always a better way. Please find it. I think in the domain of family planning, population welfare department, it is really important to find another way of doing the same thing which we have been doing time and again in the past. This is a time to innovate, and this is 2024. So I think this is the key to success. We need to innovate, not just in the policy making, in the design, implementation, monitoring and evaluation, and the social behavior change communication. So innovation is the only guiding principle that we should be implementing all the time. I'm glad at Population Welfare Department we have come a long way, as nearly each staff member is doing the social behavior change communication. But there is still more room, more innovation and more diversity. So we must embrace it, and probably this is the only way to go about it. नए साल की खुशियाँ नए अज़्म के साथ करें खुशहाली का वादा, खुशियों की बात। बेटियों को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता करना है, खुशहाली से नस्लों का दामन भरना है। बड़ी खुशियों से मुस्कुराता रहे छोटा खानदान, खानदानी मंसूबाबंदी से बनाएंगे जिंदगी आसान। मतवाज़न खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। इस बात को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि अगर आबादी पर काबू पा लिया जाता तो आज ये बच्चे सड़क की जगह स्कूल में होते। तारीख में पहली बार इस हुकूमत ने मतवाज़न आबादी का हदफ हासिल किया है। और ना सिर्फ ये बल्कि अस्पतालों में हर मरीज के लिए एक बेड मौजूद है, और इस खबर की वजह से पाकिस्तानी अवाम के चेहरे पर इत्मीनान देखा जा सकता है। पता चला है कि हालात मजीद बिगड़ने का खदशा है और खाने की चीजों की किल्लत ने मुआशी बहरान को मजीद मुश्किल बना दिया है। कुछ साल पहले तक पसमानदा समझे जाने वाले इलाकों में खवातीन की न सिर्फ सेहत में बेहतरी आई है, बल्कि वो माली लिहाज से अपने खानदान का सहारा बन रही हैं। मुस्तकबिल के पाकिस्तान में कौन सी खबरें सच साबित होंगी, अच्छी या बुरी, ये फैसला मैंने और आपने करना है। पाकिस्तान के हर फर्द ने करना है। आज ही खानदानी मंसूबा साजी को अपनाएं और एक खुशहाल और मुतवाज़िन पाकिस्तान की कल की खबरें आज लिखें। Population Welfare Department Punjab, striving for a better human capital, committed for family planning to ensure equitable resources and quality life for all. Population Welfare Department Punjab is providing family planning and reproductive health services throughout the province by its extensive service delivery network of 2100 family welfare centres, 129 family health clinics, 117 mobile service units in far-flung areas, in addition to outreach workers motivating and guiding the masses about the importance and services of family planning in Punjab. Department is also imparting technical and non-technical trainings through its Population Welfare Training Institute, Lahore, and 4 regional training institutes at Lahore, Multan, Sahiwal and Faisalabad. Population Welfare Department is implementing multiple projects for upgradation and improvement of family planning services, including premarital counselling project, strengthening services and service delivery of family planning project, contraceptive supply chain project and adolescent health centers project. The department has successfully executed various public awareness campaigns around the years for promotion of family planning and healthcare services to achieve socio-economic well-being for all. Awareness seminars are being held across the province, especially targeting students and newlywed couples. Renowned ulama, religious scholars have been taken on board to raise awareness through conferences, local meetings and Friday sermons.
61 private doctors and 45 paramedics registered and trained through franchising of Clinical Services Project. 5,287 personnel have been trained at training institutes. Population Welfare Department has made a number of IT interventions, including a uniform reporting format and training information management system to get real-time data and to meet unmet needs of family planning services. Dedicated dashboards have been developed in collaboration with Punjab Information Technology Board for real-time reporting and monitoring like contraceptive stocks inventory, biometric attendance system for field staff and e-registration of clients. All these efforts testify our resolve to take up the challenge of population growth, channelize our strengths in a positive direction, and fulfill the dream of equitable and sustainable national development. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हिना रियाज। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन और आज हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्टूडियो से। और मेरे साथ स्टूडियो में हैं दो बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ुहरा खानूम, शी इज़ चेयरमैन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और हमारे साथ हैं मैडम समन राय, हु इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट। मैडम, मैं आप दोनों को वेलकम करती हूँ टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू। और आज हम इनसे बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से, जो कि जिसके बारे में हर शख्स जानना भी चाहता है और उसको एक्सप्लोर भी करना चाहता है, कि व्हाट इज़ प्री मैरिटल काउंसलिंग। प्री मैरिटल काउंसलिंग ये है कि एक एलिजिबल कपल या न्यूली मैरिड कपल को काउंसल किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी की आगे आने वाली स्टेजेस को प्लान कर सके और एक ज़्यादा हैप्पियर लाइफ जो है अपनी मैरिड लाइफ उसको एंजॉय कर सके। तो इस हवाले से हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री मैरिटल काउंसलिंग और कितना ही ये यूज़फुल होता है एक कपल के लिए टू बी काउंसल्ड। थैंक यू वेरी मच हिना फॉर टॉकिंग फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं जो प्रैक्टिकली अपनी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि जो एक रूटीन का ट्रेंड है कि एक न्यूली वेड कपल हमारे पास आया हुआ है और उनको दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट देयर सेक्स एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, फैमिली स्पेसिंग। अब नाउ आई थिंक सो वी शुड ऑल रियलाइज़ कि इट्स अ टाइम ऑफ चॉइसेस एंड डेफिनेटली जो शादी के साथ बहुत सी चीज़ें, इवन द सोशल सपोर्ट इट्स द पार्ट ऑफ द काउंसलिंग। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि शादी होगी तो हम अपना फोकस जहाँ ये कर रहे हैं कि शादी हमने कहाँ पे सेलिब्रेट करनी है, मैरिज हॉल कहाँ पे है, कपड़े कौन से पहने हैं, जेवर कौन सा पहने हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस कपल ने बाद में एक हेल्दी लाइफ कैसे गुजारनी है। और हेल्दी लाइफ में इट्स नॉट ओनली द मेडिकल लाइफ, इवन द इट्स ऑनेस्टली अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये एक मेंटल हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में भी बात होगी कि एक कपल है, शुरू में उनके क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, मेडिकली क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, अगर उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है या उन्होंने अपना बर्थ प्रोसेस में बेबी के जाना है तो उससे पहले उनकी हेल्थ क्या होनी चाहिए एंड स्पेशली फ़ीमेल की हेल्थ क्या होनी चाहिए। दे आर सर्टन बेसिक टेस्ट। बेसिक आइडिया है कि द कपल शुड बी इन द बेस्ट ऑफ देयर हेल्थ मेंटली एज वेल एज द फिज़िकल हेल्थ के जब वो कंसीव करें। और नो डाउट एवरी प्रेगनेंसी शुड बी द वांटेड प्रेगनेंसी, इट शुड बी द प्रेशियस प्रेगनेंसी, इट शुड बी द वांटेड प्रेगनेंसी। उसके लिए अगर ये काम हम शादी से पहले से शुरू कर दें, लाइक इसमें फ़ीमेल का एक सिंपल से कुछ ब्लड टेस्ट होने हैं, मेल का एक ब्लड टेस्ट होना है। फ़ीमेल का ब्लड टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया ठीक है, अगर नेगेटिव है तो मेल का ब्लड टेस्ट क्या है। इसी तरह से कुछ बेसिकली स्क्रीनिंग है, उसकी वैक्सीनेशन है कि उसकी बचपन में पूरी वैक्सीनेशन हुई है, रूबेला की वैक्सीनेशन है जो डायरेक्टली प्रेगनेंसी रिलेटेड है। फिर उसके साथ कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से मेल या फीमेल कोई मेडिसिन ले रहा है और उस प्रोसेस में ड्यूरिंग द मेडिकेशन प्रोसेस में वो कंसीव करना चाहते हैं, उसकी एडजस्टमेंट कैसे होनी है। इसके साथ अगर वो अभी कंसीव नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग के कौन से मेथड प्रैक्टिस करने हैं। है ना, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं और समझ में मुझसे एग्री करेंगे कि कहने को ये बड़ी सिंपल सी बातें लग रही हैं कि कपल कैन टॉक अबाउट कैसे उन्होंने कब कंसीव करना है, क्या हेल्थ, लेकिन जब हमारे पास कपल आते हैं तो दे आर रियली समटाइम्स दे आर रियली अंडर स्ट्रेस कि ये वो बातें हैं कि जो ना वो बिकॉज ऑफ आवर सोशल कल्चरल बैकग्राउंड एंड वैल्यूज़ ना वो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। फिर क्या करते हैं वो कुछ या तो सर्च खुद से सर्च करते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में सर्च करते हैं। और बाई चांस कुछ ऐसे हैं कि सम पीपल जस्ट शेयर देयर बैड एक्सपीरियंसेस। इवन कि एक वेरी सिंपल ऑल्दो इट्स लाइक एक ओपन से टॉपिक है
लोगों को सेक्स एजुकेशन नहीं पता। हमारे पास बास वक्त आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ मैरिज एक कपल आके रिपोर्ट करते हैं कि वो अब तक अपना रिलेशन रिज्यूम नहीं कर सके। इट्स सो सेंसिटिव टॉपिक, पूछ भी नहीं सकते, घर वालों से भी नहीं पूछ सकते। घर में तो आपको पता है हमारी जो नॉर्मल में इस बात पे कोई भी इशू खड़ा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है। तो सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जितना हम इम्पोर्टेंस शादी के कपड़ों को दे रहे हैं, जेवर, वेन्यू और बाकी रसूमात को दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम अपने मेडिकल चेकअप, प्री मैरिटल मेडिकल चेकअप एंड काउंसलिंग को दें। वेरी इंटरेस्टिंग मैडम कि अब ज़िंदगी के बाकी शोबों की तरह जो आपका शादी का प्रोसेस है, इवन उसको भी प्लान करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो भी इस हवाले से एक कैंपेन लेकर चल रहा है। इस हवाले से पूछेंगे डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से कि मैडम किस तरह से डिपार्टमेंट इसके ऊपर अपनी इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस करवाता है और व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड प्री मैरिटल काउंसलिंग। आई थिंक पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट अगर हम पिछले कई सालों से देखें तो बहुत एक्टिव कैंपेन्स रन करता है ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स कंसर्निंग फैमिली, जो आपके बच्चों का पैदा होना, ख़ानदान की जो साइज़। लेकिन करंटली वी जस्ट रियलाइज़ कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन और उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स और ऑब्लिगेशंस क्या हैं। नो मैटर यू आर अ मैरिड कपल गोइंग टू बी एंटरिंग इनटू शादी, आप अगर पेरेंट्स हैं ब्राइड के या आपके बेटे की शादी हो रही है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में शादी एक बड़ा ही सोशल टॉपिक है। सोशल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल स्पिरिट एंड द एसेंस ऑफ अ मैरिज, उस पर शायद कभी भी फोकस नहीं किया जाता। तो इसलिए करंटली वी आर रनिंग अ कैंपेन जिसका टॉपिक है और उसकी जो टैग लाइन है वो ये कि बात करना ज़रूरी है। तो हमारे रेडियो पे भी, टीवी और प्रिंट में भी, सोशल और डिजिटल तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये कैंपेन डिपार्टमेंट की तरफ से रन करी जा रही है, जिसकी मेन थीम ये है कि आप मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग और काउंसलिंग की जितनी भी स्टेजेस होती हैं उनको ड्यू इम्पोर्टेंस दें और ऑब्जर्व करें। वेरी राइटली सेड कि बात करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी कि जो कपल्स आपके पास आते हैं किन इश्यूज़ के साथ आते हैं एंड हु डू यू थिंक इज़ द राइट पर्सन टू काउंसल देम? फैमिली का क्या रोल है इस सिलसिले में और हमारे डॉक्टर्स का कितना रोल है कि वो एक कपल को प्रॉपर्ली काउंसल कर सकें? थैंक यू, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए जो इसमें डॉक्टर्स का रोल भी है और कपल को भी काउंसल करना है, लेकिन आई थिंक सो इट्स लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम एक स्टेज आएगी कि जहाँ पे हमें ये एक हमारा पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल हो जाएगा कि प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक कि शादी की बाकी रसूमात की तरह ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी आज के दिन में जहाँ पे अभी ये ट्रेंड नहीं है, द फैमिली ऑफ बोथ साइड्स, कि सबसे पहले तो ये है कि शादी की रसूमात में से और सारे झंबेलों में से वो जो शादी है दैट शुड बी ब्लेसिंग फॉर बोथ फैमिलीज, लड़की की फैमिली के लिए भी, लड़के की फैमिली के लिए, एंड स्पेशली फॉर द कपल। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है लड़की भी अपना घर छोड़ के आती है, एक बहुत बड़ा इमोशनली एंड सारा उस पर प्रेशर होता है, लेकिन लड़का भी बड़ा ठीक ठाक प्रेशर में आ जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्टेन वैल्यूज़ और कुछ ऐसी बातें जो वो खुल के कह नहीं सकता, तो उस पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टू लुक आफ्टर दैट गर्ल। तो ये भी जो है ना प्री मैरिटल काउंसलिंग में अगर हमारी फैमिलीज़, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो डॉक्टर लेगा, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो पेरेंट्स को लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को खुद काउंसल करें कि शादी के बाद एक हेल्दी मेंटल लाइफ स्टाइल कैसे उनका गुजरेगा। फिर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो काउंसलिंग है, अगर किसी ऐसी जगह पे कि जी शादी के फ़ौरन बाद कि जी अगले महीने सब पूछ रहे हैं, अभी लड़का लड़की डिनर पे गए हुए हैं, शादी का खाना चल रहा है कि जी प्रेगनेंसी हो गई, मुबारकबाद आ गई, इट्स वेरी कॉमन ट्रेंड। तो पता चलता है हमारे पास वो कपल बेचारा कहीं छुप छुपा के आ जाता है या अपने किसी फ्रेंड से पूछ के आ जाते हैं, और कि जी पता चलता है कि उन बच्चों को तो सेक्स एजुकेशन का ही नहीं पता, उस कपल को तो सेक्स एजुकेशन का पता ही नहीं है, तो दे आर नॉट रिलेशन, प्रेगनेंसी टेस्ट कहाँ से पॉजिटिव आ रहे हैं। सो दैट कहने को देखें ये बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो काउंसलिंग है, नो डाउट कपल की भी, एंड स्पेशली जो मैटरनल साइड है, जो लड़की का यानी कि जो मेका है वो भी, और जो ससुराल का साइड है, जहाँ जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करें कि इनको ज़रूरत है एज ए सोसाइटी, वी शुड गो फॉर इट। और नो डाउट लड़का लड़की की, बल्कि आई विल सजेस्ट मैडम समन राय से कि आप ऐसा अपना कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा ज़रूर पाइपलाइन में लाएं कि जहाँ पे ये तमाम चीज़ें ऑफिशियल हो जाएं कि हमारा एजुकेशन लेवल जो भी हो, लेकिन शादी से पहले एक चेक लिस्ट हो जो कंप्लीट हो, एंड स्पेशली हमारी कंट्री में फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस के लिए।
मेरी मैडम, ये तो बहुत वैल्यूएबल आपका आइडिया है। हम वैसे सोच रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान में हर चीज़ के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी है, आपको लाइसेंस चाहिए है और बर्थ सर्टिफिकेट, आपका निकाह का सर्टिफिकेट और ड्राइविंग का लाइसेंस, तो कुछ हम मैरिज काउंसलिंग पे भी एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाएं कि जो भी उस सर्टिफिकेट का होल्डर हो उसको एक बेसिक नॉलेज और जो भी उसके ऑब्लिगेशंस हैं, एंड विच यू राइटली पॉइंटेड आउट इन द स्टार्ट कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं कि जिनका अगर आप टेस्ट करवा लें और वो टाइम पे बर वक्त पता चल जाए, तशखीस हो जाए, तो फिर आप मैरिज में एंटर होने के बजाय पहले उसकी ट्रीटमेंट ले लें ताकि आप अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें और अपनी शादीशुदा लाइफ को भी इंजॉय कर सकें। जस्ट मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि अगर हम ये प्री मैरिज काउंसलिंग में चले जाते हैं तो आई कैन से कॉन्फिडेंटली हमारा डिवोर्स रेट भी कम हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें उलझन में हमारा डिवोर्स रेट, सेपरेशन, लड़ाई झगड़े और बहुत सी वजूहात ये हैं कि हमें उसकी बेस ही नहीं पता होती। तो ये जो हमारे अपने जो एक जहन का सुकून है ना कि शादी एक सुकून के लिए गई है और खुशियों के लिए की गई है, तो इसमें भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैडम आई एग्री कि अगर जिस तरह से ज़िंदगी के बाकी मामलात में हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको गाइड एंड सपोर्ट करते हैं, इसी तरह अगर शादी के बारे में भी उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कर दी जाए, उनको एजुकेट कर दिया जाए, तो उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी डेफिनेटली अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एवरी प्रेगनेंसी शुड बी प्लान्ड, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड करेंगे कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बच्चा कब पैदा किया जाए और कितने साल का वक्फा जो है वो माँ और बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है, इस हवाले से प्लीज़ बताइएगा। ओके, एक तो इसमें ना जनरल है कि जो आपकी जो गाइडलाइंस हैं कि कम से कम आपका 2 साल का वक्फा है, 3 साल का वक्फा, लेकिन ये तमाम चीज़ें मैं जो प्रैक्टिकली एज ए गायनेकोलॉजिस्ट अगर देखूँ इसको, ये इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लाइक अगर नो डाउट दे शुड बी गुड सेटलमेंट कि जिससे पहले आप प्रेगनेंसी प्लान करें, लेकिन अगर सपोज किसी कपल की शादी लेट एज में हुई है तो वी कैन नॉट हैव उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अगले 2-3 साल इसके लिए प्लान करें। इसी तरह से हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं कि जो कि शादी प्रेगनेंसी से पहले दे आर ऑन सर्टेन मेडिकेशन। तो जो ये बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग की, असेसमेंट्स की, तो उसमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली डिफ़ाइन हो जाएंगी कि कितने अरसे का गैप होना चाहिए, प्रेगनेंसी कब प्लान होनी चाहिए, और जब प्रेगनेंसी प्लान होनी करते हैं तो कौन कौन से वाइटामिन्स होने चाहिए, बेसिक हेल्थ कहाँ पे होनी चाहिए, कौन से टेस्ट की ज़रूरत है, और अगर कोई मेडिसिन एडजस्ट होनी है, लाइक हमारे पास कुछ लड़कियां हैं कि जो दे आर डायबिटिक और दे आर विद हाई ब्लड प्रेशर और दे आर विद थायराइड डिजीज़, तो उनकी मेडिकेशन एडजस्ट होना, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वंस अगर प्रेगनेंसी हो गई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है प्रॉपर एंटीनेटल केयर एट एनी लेवल। इट्स नॉट ओनली कि आप प्रोफेसर को दिखा रहे हैं, इवन कि अगर कोई जैसा हमारे गांव देहात हैं, BHUs हैं, LHVs हैं, जो भी हैं, basically it should be every pregnancy should be properly cared of, it should be screened for the, and जो high risk pregnancies हैं definitely they should be referred to the specific areas. Very rightly said, मैडम, थैंक यू। मैडम साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो सेफ बर्थ स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके हवाले से डिपार्टमेंट क्या मेजर्स ले रहा है, हाउ आर यू प्रमोटिंग इट? आई थिंक पॉपुलेशन की तो आप कैंपेन्स देखें, जो मैसेजेस पब्लिक सर्विस हम एयर कर रहे होते हैं, तो उसमें तो यही है कि आप एक स्पेसिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि रिपीटेड प्रेगनेंसीज कैन बी डैमेजिंग फॉर मैटरनल हेल्थ, और साथ में जो बच्चा आपका भी बिल्कुल नौज़ायदा है और उसको टाइम चाहिए और फिर माँ को भी थोड़ा सा रिकवर करने के लिए वक्त चाहिए। तो इसलिए बार बार हम ये मैसेजेस देते हैं कि रिपीटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करें, मदर की सेहत को बहाल होने दें, जो आपका छोटा बच्चा है माँ उसको भी टाइम दे सके, क्योंकि आपने साथ साथ और भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी होती हैं और आपको खुद भी अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। सो दैट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज जो कि महकमा बार बार एम्फसाइज कर रहा होता है। राइटली सर, अब बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था और मेरा ख्याल है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग के हवाले से आज हम सबको बहुत कुछ जानने का मौका मिला, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि वो सर्टिफिकेट्स वाली जो चीज़ जो मैडम ने बताई उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए और इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को कंटिन्यू किया जाए। आई वुड लाइक टू थैंक बोथ आवर गेस्ट, मिस समन राय साहिबा, थैंक यू सो मच, डॉक्टर जोरा खानम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर नॉलेजेबल डिस्कशन, और वी विल हैव अ subsequent session on this topic again. Thank you so much for being with us and stay with us for another session. Thank you. आज मैं आपके साथ
प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशंस के हवाले से थोड़ी सी मालूमात शेयर करना चाहूँगी। शादी, क्या जहन में आता है शादी का सुन के? झिलमिलाते कपड़े, जेवरात, रंगारंग तकरीबात, सिर्फ यही चीज़ें। लेकिन क्या सोचें, शादी क्या हकीकी मानों में इतनी ही सती है? जबकि ये वो रिश्ता है जो हमारे तमाम रिश्तों की एक बुनियादी इकाई है। तो क्या हम शादी करते वक्त सिर्फ इन्हीं मुआशरती रसूमात का सोचना चाहिए? मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। इस सिलसिले में मुआवनत के लिए पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशंस का इनेकाद किया है, जो इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कामयाबी के साथ जारी है। इस सिलसिले में हमारे मास्टर ट्रेनर्स पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के सबसे पहले मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ट्रेनिंग मुहैया करते हैं। इन्हें शादी के हकीकी मानों से रोशनास करवाना है। उन्हें शादी के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में मुकम्मल आगाही दी जाती है। उन्हें प्लानिंग के तरीक़ों के बारे में भी मुकम्मल मालूमात फ़राहम की जाती है। इसके अलावा इन सेशंस में ये भी बताया जाता है कि कैसे कबल अज़ शादी कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करवा के मुतअद्दिद मारूसी बीमारियाँ उनसे भी बचा जा सकता है। आए जैसे हम बाकी सारे मामलात में पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं, शादी की मुशावरत में भी पूरी प्लानिंग करें, क्योंकि इस पे हमारी जनरेशन्स की हेल्थ का इन्हिसार है। और यही पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का अज़्म है कि हमारी नस्लें सेहतमंद और तवाना हों। महकमा बहबूद आबादी पंजाब ने प्री मैरिटल काउंसलिंग के नाम से एक बड़ा शानदार मनसूबा मुतारफ कराया है। इब्तदाई तौर पर यह मनसूबा 4 अजला में मुतारफ करवाया गया। इस मनसूबे के जरिए हम अपने स्पेशल तरबियत याफ्ता ट्रेनर्स के जरिए एलिजिबल क्लाइंट्स और ख़ास तौर पर अपनी नौजवान नस्ल को प्री मैरिटल काउंसलिंग मुहैया करते हैं, ताकि वो अपने आने वाली ज़िंदगी में एक बेहतर फैसला कर सकें। स्पेशली डिज़ाइन इंफॉर्मेटिव मटीरियल में शादीशुदा ज़िंदगी के मुतालिक तमाम मालूमात दर्ज हैं। इसमें शादी की उम्र क्या है, शादीशुदा ज़िंदगी में खाबंद और बीवी का किरदार क्या है, शादीशुदा ज़िंदगी में खाबंद और बीवी के फ़राइज़ क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के मुतालिक भी मालूमात दर्ज है, फैमिली प्लानिंग के तरीक़ेकार क्या है और उसकी सहूलियत कहाँ कहाँ मुयसर है, उसके मुतालिक भी इंफॉर्मेशन इसमें दर्ज है। माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से भी मालूमात दर्ज है। इस मनसूबे के ज़रिए जो इम्पैक्ट है उस पर बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमारी सोसाइटी के अंदर अर्ली एज मैरिजेस, जिसको हम चाइल्ड मैरिजेस कहते हैं, सबसे पहले जिस तरह हमें इस पे ये दर्ज किया हुआ है जो इंफॉर्मेटिव मटीरियल है कि शादी की उम्र क्या है, तो हम ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि उनके पेरेंट्स को भी बताते हैं कि शादी की सही उम्र क्या है। इससे अर्ली एज मैरिजेस और चाइल्ड जो मैरिजेस हैं उनको कम करने, उनको रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे थैलेसीमिया की सबसे बड़ी जो कॉज है वो ब्लड रिलेशन मैरिजेस, जिसको हम कजन मैरिजेस है, वो सबसे बड़ी कॉज है। और अगर हमारी प्री मैरिटल काउंसलिंग के जरिए हम लोगों को बताते हैं कि शादी से पहले आप अपनी स्क्रीनिंग करवा लें, अपनी लाइफ पार्टनर की स्क्रीनिंग करवा लें, ताकि आपके जरिए आपके अंदर जो डिजीज है वो आपके लाइफ पार्टनर में ट्रांसफर ना हो। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे हेपेटाइटिस सी, HIV, ये भी हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बताते हैं। और जो हमारा इंफॉर्मेटिव मटीरियल है उसके अंदर बड़ी डिटेल से दर्ज किया हुआ है कि आप शादी से पहले अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, ताकि आपके लाइफ पार्टनर इस बीमारी से महफूज रहे। इसके अलावा अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कम करने में मदद मिलेगी और जो हमारा CPR रेट है वो भी बढ़ेगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल इम्पैक्ट जो है हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पे भी आएगा और उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। आखिर में मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आए हमारा साथ दें और महकमा बहबूद आबादी पंजाब के साथ मिलकर औरतों और लड़कियों की सेहत और हकूक के हवाले से काम करें। ख़ानदानी मनसूबाबंदी माँ और बच्चे की सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। हमारे माशरे में चूँकि बच्चियों की शादियाँ छोटी उम्र में कर दी जाती हैं और पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसमें लोगों के घरों में खाने पीने की और अच्छी खुराक की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो रही है, जिसकी वजह से छोटी उम्र की शादियों में जब हमल ठहरता है तो माँ के अंदर खुराक की कमी की वजह से खून की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। और बीइंग अ डॉक्टर अगर आपको ये समझाया जाए कि खून की कमी जो है वो माँ की सेहत पे किस तरह असर करती है, तो एक औरत जिसके पास अपने अंदर जिस्म के अंदर मुकम्मल तवानाई नहीं है वो अपने अंदर पलने वाले बच्चे को भी मुकम्मल तवानाई फराहम नहीं कर पाती। ये जदीद तहकीकात में साबित हुआ है कि जिस माँ का हीमोग्लोबिन लेवल
कम होता है, उसके बच्चे की ज़हनी अफजाइश उस माँ के मुकाबले में कम होती है जिसकी HB पूरी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो छोटी उम्र में बच्चियाँ जिनकी शादी कर दी जाती है, चूँकि वो ख़ुद भी अभी अफजाइश के दौर से गुजर रही होती हैं, उनमें खून की कमी हो जाती है, और माँ जब एक औरत जब बच्चा पैदा करने लगती है तो उसकी खुराक का ख़ास ख्याल रखा जाए, उसकी खुराक में वो चीज़ें शामिल की जाएँ जिसके अंदर खून ज़्यादा से ज़्यादा बनने की सलाहियत हो, जैसे कि ताज़ा फल, कलेजी, गोश्त, इस तरह की चीज़ें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हर बच्चे की पैदाइश के बाद माँ के जिस्म को दोबारा से हेल्दी होने के लिए कम से कम भी 2 से 2.5 साल का वक्फ़ा दरकार होता है। हमारे मुल्क में ये मसला है कि वक्फ़ा जो है ख़ानदानी मनसूबाबंदी की प्रैक्टिसेस उस तरह से नहीं है, लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी एक औरत बच्चा पैदा करती है और उसके बाद उसने 2 साल अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो कम से कम भी जो है वो 2 साल तक उसका वक्फ़ा किया जाए। और ख़ानदानी मनसूबाबंदी ही वो तरीका है जिससे हम एक सेहतमंद माँ और एक सेहतमंद माशरा तश्कील दे सकते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद अगले बच्चे के लिए कम से कम 3 साल का वक्फ़ा ज़रूरी है। इस दौरान माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसके जिस्म के अंदर जो जो चेंजेस आए होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए किसी भी अगर औरत ने अपने अगली प्रेगनेंसी प्लान करनी है, उसमें कम से कम आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी के क्लिनिक्स में आएँ, डॉक्टर्स के साथ मशवरा करें और 3 साल के लिए जो भी वक्फे के तरीक़ेकार हैं वो इस्तेमाल करें, ताकि हम एक सेहतमंद माँ के थ्रू एक सेहतमंद माशरा तश्कील दे सकें। शुक्रिया। वक्त कभी रुकता नहीं, ना ही एक सा रहता है, लेकिन इससे सबक भी मिलता है। गिर गिर कर संभलना पड़ता है, क्योंकि वक्त से जो नहीं सीखता वो नाकाम कहलाता है, और नाकामी हमारा मुकद्दर नहीं हो सकती। हम मिलके सब बदलेंगे। सबके लिए सेहत, तालीम, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, खुशहाल मुस्तकबिल। 24 करोड़ ख्वाब, एक पाकिस्तान, छोटा खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहाँ होती हैं। अवाम में आबादी और वसाइल में तवाज़ुन का शऊर उजागर करने और बच्चों की पैदाइश में बेटे और बेटी की तफरीक का जो एक अमूमी रवैया पाया जाता है, इसकी हौसला शिकनी करने के लिए महकमा बहबूद आबादी पंजाब की जानिब से सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर सलमान एजाज की ज़ेर क़ियादत और डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट समन राय की सरबराही में लाडलियाँ के उन्वान से आगाही मुहिम जारी है। एक सोच ने अंगड़ाई ली है, एक और कली मुस्काई है। मेरे घर में सारे जहान की खुशी सिमट आई है। बेटी की पैदाइश की गर्ज से कुंबे को बढ़ाते जाना हमारे माशरे में एक आम रिवाज पाया जाता है, जिससे हमारे मुल्क की आबादी तेजी से बढ़ रही है और वसाइल और आबादी में ये अदम तवाज़ुन बेशुमार मसाइल का पेश खैमा साबित हो रहा है। लोग समझते हैं कि बेटा पैदा करना ख़ानदान के नज़दीक फ़ख्र की बात है और बेटे की बदौलत ही इनका नाम और पहचान आगे बढ़ पाएगी। डायरेक्टर जनरल बहबूद आबादी समन राय ने महकमे का चार्ज संभालते ही इन जैसे दुक्यानूसी ख्यालात के खिलाफ शऊर उजागर करने में खासी दिलचस्पी दिखाई है। बेटियां खुदा का बहुत अनमोल तोहफा है और इनके वसीले से ही कायनात में हमारी ज़िंदगियों में एक रंग है। ठीक है, ये कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। मैंने उसको बड़ा लाड प्यार से पाला है और बेटियों के अलावा आपको पता है माँ बाप का कोई सहारा भी नहीं होता। बच्ची अल्लाह से बहुत दुआएं लेके ली हैं और बहुत अच्छी लगती है।
बेटी तो अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। शफ़क़त और रहमत के साथ इनकी बेहतरीन तरबियत करके हमें खुशहाल माशरे के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। ये हमारी लाडलियाँ ही होती हैं जिनके आने से आंगन में खुशबू सी महक उठती है। वालिदैन की हकीकी गमगुसार और इनकी खुशियों का जहाँ ये हमारी लाडलियाँ ही होती हैं। इनके हर कदम के नीचे एक अज़मत पिंधा है। अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी बेटियों पर नाज करें, उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उनको परवान चढ़ाएं। तहज़ीब याफ्ता और खुशहाल माशरे का दारोमदार हमारी इन्हीं लाडलियों से जुड़ा है, क्योंकि बेटियाँ बसाएं घर, बेटियाँ सजाएं घर। ये बैंक के कागजात आपने देख लिए? ओ मेरे कामों से तू परेशान मत होया कर, और मेरे काम मेरे जो गई रहने दे तू। कब उठा लूं अम्मी जी? जी बेटा उठा लो। शाहबानो बड़ी हो गई है, कुछ उसके बारे में सोचे। ओए भोले बादशाह, वो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो शाह बानो अभी बच्ची है, उसके बारे में परेशान मत होया कर। बच्चियां कितने ही बड़ी हो जाएं, माँ बाप के लिए तो बच्चियां ही रहती हैं। आप ज़रा उसके बारे में सीरियस सोचें। वो देख ले के खानदान में इसके लिए कोई अच्छा मुंडा। अम्मा दुआ करना आज का पेपर अच्छा हो जाए, फिर देखना आपकी बेटी को सीएसएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आहिस्ता बोलो, अगर तुम्हारे बाबा को तुम्हारे इरादों का पता चल गया तो इस घर के अंदर तूफान आ जाएगा। जल्दी करो भाई। वालेकुम सलाम। और तुम दुपट्टा सर पे ले लो, गांव में कोई इज्जत भी है हमारी। तुम भी ना, जल्दी करो। क्या मसला है? कैसा हुआ पेपर? भाई पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मजा आ गया। लेकिन शाहबानो, तुम जानती हो कि हमारे जो बरादरी है इसमें ख़वातीन का मुलाजमत करना बहुत मायूब समझा जाता है, लेकिन मैं इसको गलत नहीं समझता, मैं बता दूं। देखा जाएगा भाई, देखा जाएगा। अम्मा, अम्मा भाग के आओ। क्या हुआ लड़की, किस खुशी में झूम रही हो? अम्मा बात ही कुछ ऐसी है, मैंने सीएसएस पास कर लिया अम्मा। अब मैं बड़ी सरकारी अफसर बनूंगी अम्मा। मुबारक हो, आपकी बेटी ने सीएसएस का इम्तिहान पास कर लिया है। चलो अच्छा हो गया भोले बादशाह, आपकी बेटी ने 16 पास कर लिया। अब आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अब मेरी बेटी सरकारी दफ्तरों में काम करेगी। बाबा अब जमाना बदल चुका है, आजकल औरतें मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। इतनी मेहनत के बाद रब ने ये मकाम दिया है
तो आप भी खुश हो जाएं। बाबा, अब हमारा इलाके पे रोब होगा। आपकी इज्जत और शान में इजाफे के साथ साथ पग और भी ऊंची होगी। ठीक है, मैं सुनाता हूँ अपना फैसला। ऑफिसर की तो शादी भी करना पड़ेगी, और अगर शादी हो गई तो जदाद में हिस्सा भी देना पड़ेगा। बाबा जान, अम्मी ने बताया, आप मुझे पूछ रहे थे। हाँ, बैठो। हमारी बरादरी में बच्चियों का इतना ज्यादा पढ़ने का रिवाज नहीं है, मगर तुम नूर खां की बेटी हो, तुमने यूनिवर्सिटी में मर्दों के साथ पढ़ा है, तो क्या कहते हैं, को एजुकेशन, और अब ये नौकरी। बाबा जान, आपको अपने खून पर एतबार नहीं है? मैं आपका सर कभी शर्म से नहीं झुकाऊंगी, आपकी इज्जत पर हर्फ भी नहीं आने दूंगी। मैं जानती हूँ मैं नूर खान की बेटी हूँ, ये शाहबानों का आपसे वादा है। देख लेना पुत्र जी, मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करते हुए बहुत बुरा लगेगा। बाबा जान, आप बेफिक्र रहें, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। शरोज बेटा। जी बाबा। बेटा जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। आओ बेटा आओ। बेटा आज मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। जी बाबा बोले। मैं देखता हूँ कि तुम अपनी बहन का ज़रा ख्याल नहीं करते। नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो, एक बात कहूँ, अपनी बहन के साथ कभी सख्ती ना करना। जी बाबा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारी किसी नालायकी की वजह से हमारी जायदाद के मजीद हिस्से न बढ़ जाए। ओए भोले बादशाह, वो 30 साल पहले याद कर, 30 साल पहले ये दरख्त नहीं होते थे, हाँ? उस वक्त भी हम यहीं बैठा करते थे, और पता है क्या बातें किया करते थे? क्या करते थे? पापा, माँ, पापा, आपका बेटा इंस्पेक्टर बन गया पापा। माँ सदके। क्या बात है? जी ठीक है, कल बैठ जाते हैं, पंचायत में बैठ के फैसला होगा और कैसे हो सकता है। आप बेफिक्र रहें, कुछ ना कुछ उसका करते हैं हल पे। जी भाई, अरे क्या कर रही हो भाई? अरे क्या हो गया? आपको पता है मेरा प्रमोशन हो गया है। सच? यस। आप पार्टी दो हमको। मेरी बहना। साथ बिस्मिल्लाह जी, आया जी, नगद इनाम फरूट छाबरा के लिए जी। तशरीफ ले आए जी इस तकरीब के मेहमान मुअज़्ज़म, हाज़िर अज़ीज़ शख्सियत जनाब इज़्ज़त इमाम, नगद इनाम तशरीफ आवरी और हौसला अफजाई का बेहद शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।
मलक जफरुल्लाह जफरी जी अपनी कला शो करते हुए यकीनन ये पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदगी करते हैं। टेनिस बॉल में मलकुल्लाह जफरुल्लाह जफरी अच्छी शॉट थी कमर पे ये क्लास जी ये क्लास मलक जफरुल्लाह जफरी जिन्हें दिल अपने सदे से इनामात की बारिश जी फरम जामरा विकेट पे मौजूद अच्छी शॉट जी फरम के यकीनन ओए पुत्री, मैं सारी आजादी तेरी माँ को भोली बादशाह बोलता रहा। वो आज पता चला है कि वो भोली नहीं, वो भोला मैं था। हैं? और मुझे पता ही नहीं कि मेरी बेटी कौन सी पढ़ाई कर रही है। हैं? वो इतनी पढ़ाई करके और मेरी पुत्री कितनी बड़ी अफसर बन गई है। हैं? अब्बा जी, आप खुश तो हैं ना? हाँ पुत्र, वो बड़ा ही खुश। पुत्र, आज पता चला है कि बेटियां भी बेटों की तरह खानदान का नाम रोशन कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल बाबा जान। और बाबा जान, हम अब अपनी शाहबानों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और हम शाहबानों को जायदाद में से भी पूरा पूरा हिस्सा देंगे। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, और ये इसका हक है। मैं समझता हूं कि गांव की हर बेटी को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना होगा। मेरी बेटी की तरह हर बेटी कामयाब हो सकती है। बच्चों की ज्यादा तादाद की बजाय उनकी तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए। बेटों की ख्वाहिश में खानदान के अफराद में इतना इजाफा ना करें कि मसाइल काबू से बाहर हो जाएं। मेरी शाहबानों की तरह गांव की हर बेटी वालिदैन और गांव का नाम रोशन कर सकती है। आई थिंक जितना पूरी दुनिया में ख़वातीन इस वक्त अपना रोल अदा कर रही हैं वो बहुत ही कमेंडेबल है। सो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब शब रोज़ इसी कोशिश में रहता है कि हम ख़वातीन के मुतालिक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि वो किस तरह हमारी ज़िंदगियों में एक खूबसूरत रोल अदा कर रही हैं बहैसियत एक माँ, बेटी, बहू और बहन के रूप में, और वो हमारी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। सो आई विश एवरीवन हैप्पी 8 मार्च 2023 एंड आई जस्ट होप कि हर साल हम इस दिन को इतने ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और साल भर के दौरान भी अपनी ख़वातीन के कंट्रीब्यूशन को याद रखें। बड़ी एक अहम बात है जो मैं आपसे करना चाहूँगा। औरत, माँ, बहन, बेटी और फिर सबसे बढ़कर मेरे रब ने बीइंग ए मुस्लिम जो मतम नज़र होता है किसी भी मुस्लिम का कि मेरे मालिक मुझे जन्नत में जाना है और उसके लिए वो सारी ज़िंदगी एक तपस्या से गुजरता है। मेरे मालिक ने वो जन्नत जो है वो उस औरत मेरी माँ के कदमों के नीचे रख दी। इससे बड़ा मकाम हो सकता है किसी औरत का? किसी भी मुल्क में खुशहाली के लिए आपको बीइंग ए नेशन अपने वसाइल, अपने सर्कमस्टांसेस, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जो है उसकी शेड्यूलिंग और उसका स्केड्यूल बनाना चाहिए। ख्वाब देखने पे कोई दुनिया में पाबंदी नहीं है, लेकिन जब आप कम वसाइल के बावजूद भी एक बड़े ख्वाब रख लेते हैं, बच्चे जो हैं वो तो कहते हैं दो ही अच्छे, हम बिल्कुल ये सोचे बगैर के अल्लाह की रूहें हैं वो दे रहा है वो दे, नो, कुछ प्रिकॉशंस जो है वो ज़िंदगी में हमें खुद रखने, अपने आप पे लागू करने। ज़रूरी नहीं कि कोई आपको बताए, ये आपकी जबिल्लत में, आपके कंटेंट्स में, एक आपकी हार्ड डिस्क में रब ने ये रखा हुआ है कि आप अपने अच्छे और बुरे एक्ट को खुद जो है वो स्कैन कर सकते हो। तो इब्तलाओं से गुजर रहा है मेरा मुल्क। इस ये जो सैलाब और ये जो सारी तबाही हुई, इसको कंपनसेट करते हुए हमें कई बरस लगेंगे, फिर जाके हम वो सारा कुछ कर सकेंगे। तो इन एनवायरनमेंट में अपने उस वसाइल पे तवज्जो रखिए, अपनी ज़िंदगी का पैटर्न उतना बनाइए जिसमें आप उस छोटे बजट में भी अपने आप को इजी रख सके। खुशहाली के लिए थोड़ी सी तवज्जो रखिए
औरतों को जीने का हक दीजिए। वो जन्नत उनके पाँव में रखी हुई यार, और हम इस तरह अपने ख्वाबों में अनड्यू करते चले जाते। खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि मिनहसुल कौम हम सबको अब कुछ डिसीजंस खुद एहतसाबी के हवाले से लेने हैं। बेहतरियाँ होंगी। औरतों को एक हद तक उन पर जिम्मेदारियाँ डालिए जो आप अपने घर में बीइंग हेड ऑफ उस घर के अफोर्ड कर सकते हैं। इससे जब आप ये सब एहतसाब कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो आने वाला वक्त है उसमें हम अपने उस टारगेट को अचीव कर लेंगे जिसके लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था। थैंक यू वेरी मच। दो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ज़ायद थी और शरह नमू 2.4% रिकॉर्ड किया गया। 2023 तक हमारी आबादी 24 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है और शरह नमू 2.55% तक पहुंच चुकी है। ये एक ऐसा इजाफा है जो हमारी फौरी तवज्जो का मुतकाज़ी है। जैसे जैसे हमारे शहर और देहात अफराद की कसीर तादाद से बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे महदूद वसाइल पर दबाव वाज़ेह तौर पर बढ़ रहा है। वसाइल और आबादी में तवाज़ुन अब हमारा इंतखाब नहीं बल्कि वाज़ेह सूरत बन चुका है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी अब एक वाहिद रास्ता है जिसके साथ पायदार मुस्तकबिल का रास्ता जुड़ा है। यही वक्त है कि हम अपनी तवज्जो मिक़दार से मयार की तरफ मुंतकिल करें। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब वसाइल और आबादी में तवाज़ुन और खुशहाल माशरे के क़याम के लिए रहनुमा रोशनी के तौर पर मौजूद है। आइए वक्त के सिफ़ात को पलटते हैं और एक नई सोच, नए अज़्म और नई उम्मीद के साथ मिलकर मतवाज़न पाकिस्तान का हुसूल मुमकिन बनाते हैं। और चौधरी साहब, आजकल पिंड में नई नई बातें हो रही हैं। वो ऐसी कौन सी बातें हो गई जो तेरी समझ में नहीं आ रही? और चौधरी साहब, आज लेडी हेल्थ वर्कर्स हमारे घर आई थी। वो कहती हैं बच्चों की तादाद और वसाइल में तवाज़ुन होना चाहिए, और वो ये भी कहती थी कि बच्चों की तादाद की बजाय बच्चों की तरबियत पे जोर देना चाहिए। ना भला चौधरी साहब, ये तालीम और तरबियत तो मास्टर जी का काम है ना यार। नया जमाना, नई नई बातें, और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो यार, हमने तो अपने बड़ों से एक ही बात सुनी है, जितना बड़ा खानदान उतने मसाइल कम। खानदान बड़ा और मसाइल कम, ये बात कुछ समझ नहीं आई चौधरी साहब। और चले, इसमें समझने की क्या बात है? तू जानता है ना मेरे 6 बेटे हैं, और मैं तो उनको देख देख के खुश होता हूँ। अभी छोटे हैं, खेती बाड़ी और आड़त का काम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, जितने ज्यादा बच्चे होंगे जमीन में उतने ज्यादा हिस्से पड़ेंगे ना। यार, तुम ये सोचते हो कि जमीन में ज्यादा हिस्से पड़ जाएंगे, और ये नहीं सोचते कि ज्यादा काम करके नई जमीन भी खरीदी जा सकती है। वसाइल और मसाइल का तल्लक मेहनत और सुस्ती से है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, सुस्ती करोगे तो वो भी बर्बाद। सही फरमाया। लेकिन चौधरी साहब, ये नज़ीर तो बिल्कुल हेल्थ वर्कर की बातों पे मुकम्मल काम कर रहा है। ये कहता है कि मेरी एक बेटी है मेरे वसाइल के मुताबिक, और उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने की भी ये बातें करता है। यार, ये बादशाह बंदा है, इसको समझ में नहीं आनी बात। इसको क्या पता कि बेटी पराया धन होती है, उसने पढ़ लिख के क्या करना है। ओ बाप की पगड़ी तो बेटों के सर पे ही रखी जाती है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, ये डॉक्टर साहब ने ना आपके लिए दवाइयाँ भेजी हैं
और उन्होंने ये भी कहा है कि खाने पीने में एहतियात किया करें। शुगर का मरीज़ एहतियात से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है। नज़ीर भाई, मैंने आपको सब्जी लाने का कहा था। बेटी के साथ बातों में इतना मसरूफ होते हो कि बिल्कुल भूल जाते हो। नहीं बाजी, मैं अभी आपकी सब्जी ला देता हूँ। मेरी बेटी तो मेरी कुल कायनात है। चले बेटा, बाजी के लिए सब्जी लेके आते बाजार से। आजा मेरी धी, चल शाबाश। चौधरी को मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती? ये बार बार मेरी दुआइयाँ नज़ीर क्यों लेके आता है? अगर उसके पास अल्लाह की रहमत है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी हर दुआई लेके वो आए तो मुझे शफा हो। मुझे तो बिल्कुल मनूस लगता है। मेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। मैं ऐसे नहीं कहते, वो भी अल्लाह का बंदा है और सारा दिन हमारे घर के कामों में लगा रहता है। अगर अल्लाह ने उसको बेटी दी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मनहूस है। वो तो हमारे घर के काम भी बड़ी खुशी से करता है और अपनी बेटी को भी बड़े अच्छे तरीके से संभालता है। मैंने तो किसी को भी नहीं देखा जहाँ खुद जाए और बेटी को भी साथ लेके जाए। ये कौन सा लाड हुआ? अल्लाह तो बाजी ये ले आप अपनी सब्जी, और मैं बाजी अब घर जा रहा हूँ। बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मनाओ तो? जी माँ जी। तुम हर वक्त अपनी बेटी को साथ साथ लेके फिर रहे हो। लगता है दूसरे वालिदैन से ज़्यादा तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो। जी माँ जी, मुझे वाकई अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। और माँ जी, मैंने तो अपनी बेटी को स्कूल में दाखिल भी करा दिया है और वो बड़े ध्यान से पढ़ती भी है। अब कुछ आता जाता भी है कि तुम्हारे पैसे ऐसे ज़ाया कर रही है? नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी बेटी बड़ी ज़हीन है, बड़ी होशियार है, फर अंग्रेज़ी बोलती है और लिखती भी है। और माँ जी, मेरी बेटी की कॉपी में सितारे बने हुए हैं, स्टार्स बने हुए हैं। बेटा, बेटियों से नाम नहीं बनते, बेटों से नाम बनते हैं। बेटे नाम कमाते हैं। पता है, नज़ीर बता रहा था कि उसकी बेटी इंग्लिश पढ़ भी लेती है और लिख भी लेती है, और एक हमारे बच्चे पढ़ाई पे तवज्जो ही नहीं देते। वो ऐसा कुछ नहीं है जमीला। और गांव के बड़े मसले मसाइल होते हैं तो ये ऊंच नीच हो जाती है। और आप भी ना मेरी किसी बात पे तवज्जो नहीं देते। अगर आपने तवज्जो दी होती ना तो आज हमारे बेटे भी किसी काबिल होते। वो तो दिन ब दिन झगड़ालू होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम, बैठो। और ये मिठाई किस खुशी में? ये बाजी, मेरी बेटी सारा ने CSS में टॉप कर लिया है, बहुत बड़ी अफसर लगी है। ये ले बाजी, मुंह मीठा करें। बाजी, तो बड़ी खुशी की बात है। अगर बड़ी अम्मा होती तो कोई और बात थी। खैर, आप मेरी बेटी के लिए दुआ करें बस। नज़ीर, दुआएं तो पहले भी बहुत करती थी मैं, और अब भी मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और बड़ी बात है, तुमने इतनी मेहनत की और तुम्हारी मेहनत रंग लाई है कि सायरा बेटी बड़ी अफसर बन चुकी है। बस अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। ओए, आजकल बड़े कचहरी के चक्कर लगा रहे हो, और जमीन के पैसे मैंने दिए हैं, और जमीन पे कब्जा कैसे करना है ये मैं जानता हूँ। ओए, कितनी बार कह चुका हूँ कि मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए, तो ज़मीन देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और वैसे भी ये कब्ज़ों का जो दौर है ना, वो ख़त्म हो गया है और कानून मेरे साथ खड़ा है। ओए, ज़मीन की रकम मैंने दी है, देख लूँगा तुझे भी और तेरे कानून को भी। और फिर वही बकवास,
मैंने कितनी बार बोला है कि मैंने तुझसे कोई पैसे नहीं लिए। कोई सबूत है तो दिखा। सबूत? दिखा दूंगा सबूत भी। जब वक्त आएगा ना तुझे सबूत भी दिखा दूंगा। 40 शक्ल घूम कर अपनी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। शुक्रिया। अब्बा जी बेटा। वो रब नवाज आया था अपनी जमीन की शिकायत लेकर और बता रहा था आपका बहुत पुराना दोस्त है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा बंदा है बेचारा। रब नवाज और सादिक में बहुत पुरानी दुश्मनी है। सादिक को चौधरी साहब की शय मिली हुई है इसलिए, और बेचारा रब नवाज वो सीधा साधा गरीब आदमी है। अब तो बेटा इनकी काफी दुश्मनी बढ़ चुकी है। अगर हो सके तो रब नवाज के लिए कुछ करना बेटा। जी अब्बा जरूर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। चौधरी साहब, आप तो जानते हैं ना कि मैंने रब नवाज को पैसे दिए हुए हैं। अब वो ज़मीन देने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इतने भी क्या बुरे दिन आ गए मेरे, क्या मेरी तो मदद ही नहीं कर रहे। तो क्या चाहता है मुझसे? यार हूँ आपका चौधरी साहब, मेरी ज़मीन खाली होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि रब नवाज की फसलों को आग लगा दी जाए और वहाँ मेरे हल जोत दिए जाएँ, और ताकि पिंड वालों को भी पता चले कि चौधरी खालिद चौधरी साबर का यार है। अरे मसला ही कोई नहीं, आज ही खाली हो जाएगी। ओ मुंडियो, ओ किधर हो तुम? जी बाबा जानी। और पुत्रो, चौधरी सादे के साथ जाओ और जैसे ये कहता है वो करके आओ। चाचा आप भतीजे हो। भाई जी मैं रब नवाज बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर, चौधरी के बेटे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके? मैडम जी, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है। बहुत जल्द मुलजमों को सलाखों के पीछे आप देखेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये मुल्जमान 24 घंटे के अंदर सुराखों के पीछे चाहिए। इसके लिए चाहे आप जो मर्जी करें। समझ गए आप? जी मैडम जी। यूं घर में पड़े रहने से क्या होगा चौधरी साहब? आपको पता है मेरे लाल 2 दिन से जेल में बंद है और आपको कोई फिक्र ही नहीं। फिक्र क्यों नहीं, आखिर खून है वो मेरा। अभी थानेदार के पास से ही आ रहा हूं। वो कहता है मेरे बस की बात नहीं है। थानेदार के पास जाने से बेहतर था अगर नजीर की बेटी के पास चले जाते। आपको पता है वो वहां पे बड़ी अफसर है और मुझे यकीन है वो आपकी बात कभी भी नहीं टालेगी। वो जरूर हमारे लिए कुछ करेगी। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे शर्म आती है उसके पास जाते हुए। अब इस तरह सोचते रहेंगे तो मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे मेरे बेटे लाके दे। अल्लाह कोई बेहतर रास्ता निकाल देगा, मत परेशान हो। बेटा जी, मैं चौधरी खालिद, आप जानती तो हैं मुझे। जी जी क्यों नहीं, आप हमारे मोहसिन हैं।
जी बताएं, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? वो जी बेटा जी, मेरे बेटे 2 दिन से थाने में बंद हैं। अगर किसी तरीके से रिहा करवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपके बेटों की ज़मानत तो 2 से 4 दिन में हो ही जाएगी, लेकिन सोचने की बात यह है, अगर आपने अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत की होती तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता। अब देखें ना, मेरे अब्बू भी आप ही के मुलाजिम थे। उन्होंने तमाम रवायत की जंजीरें तोड़कर मुझे पढ़ाया, मेरी तरबियत की, और देखें आज मैं भी आपके सामने हूँ। आप भी अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत की सहूलियात फ़राहम करें ताकि वह मुआशरे के बेहतरीन मुफीद शहरी बन सकें। ये तभी मुमकिन है जब वसाइल के मुताबिक बच्चों की तादाद हो। रवायात और जहालत की हौसला शिकनी करें और आज ही फैसला करें रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल का। चाय ले लीजिए। ज़ारा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतने खूबसूरत बच्चे का बाप बन चुका हूँ। ये सब हमारे अल्लाह की मेहरबानी है। बेशक, देखो ना, बिल्कुल मेरे जैसा है मेरा चांद। जी नहीं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, खुश मिजाज। देखिए अभी भी मुस्कुरा रहा है। भाई खुश मिजाजी का तो पता नहीं, लेकिन अपने पापा की तरह समझदार ज़रूर होगा। देखते हैं। ओके ज़ारा, कॉलेज से देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा। 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। ये जूस पूरा पी के जाएं। तुम नहीं बोलती। पीजिए। अच्छा वापस आते हुए किसी अच्छे से ब्रांड का दूध लेते आइएगा। ये हमारे अरहम साहब है ना, मुझसे फीड नहीं कर रहे हैं अब। ओके, लेता हूँ। सी यू। बाय। क्या बात है, बहुत चुप चुप हो, कोई परेशानी है क्या? हाँ हमज़ा, ऑफिस से बॉस की कॉल आ रही है, कह रहे हैं काम का प्रेशर बढ़ रहा है, अब तुम प्लीज़ ज्वाइन कर लो। तो इसमें मसला क्या है, ज्वाइन कर लो। मसला अरहम का है। इतने छोटे बच्चे को ना तो मैं ऑफिस लेके जा सकती हूँ, न जाने कब रोने लग जाए, और घर अकेला छोड़ूँ तो किसके पास। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। हमज़ा, मैं सोच रही हूँ कि बॉस को मना कर दूँ कि अब कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, आखिर कब तक उनको टालती रहूँगी। देखो ज़रा, मेरे कोलीग हैं जवाद साहब, उनका भी यही मसला था। उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक आया रखी हुई है, बहुत कॉम्पिटेंट है। सोच रहा हूँ मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं हमज़ा, क्या पता वो अरहम को हैंडल ही ना कर सके फिर। यार तुमने कौन सा अरहम को फीड करना होता है, वो इतना छोटा है कि तुम हो या कोई और औरत। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर वर्कआउट हो गया तो ठीक है, कंटिन्यू कर लेंगे। क्या कहती हो? मैं करता हूँ उनसे बात। सना, मैं अब ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अरहम की ज़रूरी चीज़ों का सामान सामने अलमारी में रखा हुआ है, देख लेना कुछ चाहिए हुआ तो। बाजी आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाएं, बच्चा बहुत प्यारा है, ये तो मुझे बिल्कुल तंग ही नहीं करेगा। उम्मीद तो यही है, लेकिन सना अगर फिर भी हैंडल ना हो और तुम्हें तंग करे तो तुम मुझे ऑफिस में कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। बाजी आप बेफिक्र होके ऑफिस जाएं, बच्चा बहुत प्यारा है, ये तो मुझे बिल्कुल तंग ही नहीं करेगा। ठीक है सना, ख्याल रखना, ठीक है? जी जी बेगम। अरे वाह,
यहाँ तो दोस्ती हो गई है और मैं खामखा परेशान हो रही थी कि पता नहीं अरहम साहब ने तुम्हें कितना तंग किया होगा। मुझे तो लग रहा है तुमने इसे मेरी कमी ही नहीं महसूस होने दी। बाजी अरहम साहब भी मेरे अहमद जैसे हैं, वो भी सारा दिन मेरे साथ ऐसे ही खेलता रहता था। खेलता रहता था मतलब? बस बाजी 4 महीने हो गए, जिसकी अमानत थी उसने ले ली। सो सैड। लेकिन तुम परेशान मत हो, अरहम भी तो तुम्हारा ही बेटा है ना। तुम अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए कभी परेशान मत होना। जी बाजी। अच्छा बाजी आप इसे संभालें तो मैं इसके लिए ये फीडर तैयार करके लेके आती हूँ। अरे ये तो सो ही गई है, ये तो माशाल्लाह पूरी अरहम जैसी है ना। अल्लाह पाक बस इसके ना नसीब अच्छे करे। हाँ हाँ, अरे वाह, मैंने बाइट देखा कि अरहम तो बहुत तुम्हारे साथ मिक्सअप हो गया हुआ है। वो तो लगता ही नहीं है, वो तो लगता है जैसे तुम्हारा ही बेटा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सना भी अरहम से बहुत प्यार करती है और इसके प्यार की वजह से ही मैं अरहम की वजह से बिल्कुल बेफिक्र हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है सना, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सना, हाँ रुको 1 मिनट। ये ऐसा करे कि तुम रख लो, रखो, काम आएंगे। भाई सना, जिस तरह से तुमने हमको बहुत प्यार दिया, उसका बहुत ख्याल रखा, मैं चाहती हूँ अब मेरी लाडली बेटी मिनाहल का भी तुम इसी तरह से ख्याल रखो और उसकी सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। क्यों नहीं बाजी, अरे वो तो तितली मेरी जान है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मेरी बेटी के दिखाओ तो, क्या खेल रही हो? मेरा बेटा क्या कर रहा है? अरहम क्या हुआ बेटा? अच्छा चलो मुझे होमवर्क दिखाओ आज अपना। चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ, होमवर्क कर लो, फिर जॉलन भी जाने। थैंक यू, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है? होमवर्क अच्छे से करना। पता नहीं सारा, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चों और हमारे दरमियान एक गैप है। हमसे बात करते हुए हेजिटेशन फील करते हैं, कोई बात ही नहीं शेयर करते हमसे। और आया तो लगता है जैसे इनकी माँ बाप है। अरे नहीं हमजा, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। आप सारा दिन कॉलेज और दोस्तों में होते हैं और मैं पूरा दिन ऑफिस में मसरूफ़, घर आके भी ऑफिस की कॉल्स और सोशल मीडिया से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। लेकिन जो भी है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है? जी जी, मैं अरहम का फादर बात कर रहा हूँ। आप ऐसा करें कल ऑफिस आ जाएं, वहीं बैठ के बात कर लेते हैं। जी ठीक है, मैं आ जाऊँगा। थैंक यू मैडम। अरहम का पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता, किसी सोशल एक्टिविटी में भी हिस्सा नहीं लेता और अपने क्लास फेलो से बिल्कुल अलग थलग रहता है। आई डोंट थिंक सो, मैंने तो उसे हमेशा किताबों के साथ देखा है, होमवर्क कर रहा होता है या स्टडी, और वो भी पूरी तवज्जो के साथ। लेट मी कॉल हिम। शकूर, अरहम को 3rd A से भेजें, रोल नंबर 24।
क्या नाम है बेटा आपका? जी वो और हम किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 3 में। आपके टीचर का क्या नाम है? वो टीचर का वो कोई बात नहीं, चलो आप अपनी क्लास में चलो। तो देखा आपने हमजा साहब, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, डरा डरा सा रहता है, खौफजदा सा। मैडम आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन मैं आज डॉक्टर हमदानी से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। क्यों मैडम, ये ठीक रहेगा ना? वो साइकेट्रिस्ट है, शायद आप जानती हो उन्हें। जी, मैं भी आपको यही मशवरा देना चाह रही थी। बेस्ट विशेस। क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इन बच्चों का क्या बनेगा। आपने देखा अरहम प्रिंसिपल के सामने कितना डरा हुआ था, और मैं देखती हूँ कि मिनाहिल भी इसी के नक्शे कदम पर चल रही है। ये बच्चे तो हमारे साथ फेमिलियर होते नहीं हैं, पब्लिकली भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बच्चों को इतना शायद तो नहीं होना चाहिए। तुम परेशान ना हो, डॉक्टर हमदानी बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। उनके इलाज से इंशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत जल्द दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने लग पड़ेंगे। अरे भाई क्या हो गया हमारे बब्बर शेर को? ये तो माशाल्लाह बहुत क्यूट है, बड़ा इनोसेंट है। मसला क्या है? इसके प्रिंसिपल कहते हैं कि ये हर वक्त खौफजदा सा रहता है, अवॉइडिंग एटीट्यूड है इसका। बेटा बैठे। हमारे बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छा स्कूल और अच्छी किताबें ही नहीं चाहिए होती, बल्कि उनको चाहिए होता है वालिदैन का प्यार, उनकी मोहब्बत और उनकी कमाई।